Hello students, myself Dr. Preeti Sharma from Gyandeep Senior Secondary Public School. Students, we are reading the second chapter of your book, We Are Not Afraid to Die If We Can All Be Together, written by Jordan Cook and Alan East. We have already started this chapter and I have given you a pretty long description of this chapter also. We shall proceed the chapter from the point where we left last time. Student, we have read how the author, the captain, made a journey with his family and what were the hardships the author and his family faced during this journey. And we also read how the only 6-year-old son of Captain Jonathan uh, gave inspiration to the captain by saying that he is not afraid to die if the whole family is together, and how the captain made anchor with whatever things he was available with and tried to escape from these dangerous conditions. Now let's proceed the chapter. We will read further. Now the author is saying, we will start reading from here. That evening, Mary and I sat together holding hands as the motion of the ship brought more and more water in through the broken planks. We both felt that the end was very near. Now, the author, the captain, is saying that um, after making the improvised anchor with the use of paraffin barrels and decide to encounter the situation. That evening, he and his wife Mary sat together holding each other's hands, and they were worried because they can see, in spite of their best effort, they are not able to give a satisfactory result to their struggle. Even after that, even after making so many efforts, they are able to see that the water was still coming inside the ship through the broken planks, through the broken holes. जो शिप था डैमेज हो चुका था. हमने पढ़ा है कि जो शिप का राइट साइड है, जिसको हम कहते हैं स्टार बोर्ड साइड, वो पूरी तरह से डैमेज हो गया था. और वहाँ से जो ब्रोकन प्लैंक्स थे, छेद थे, होल्स थे, उनमें से अभी भी जो पानी था ओशन का, वो लगातार शिप के अंदर एंटर कर रहा था. तो ऑथर और उसकी वाइफ मैरी इस कंडीशन को देख के वरीड थे और वो फील कर रहे थे कि नाउ देयर एंड इज़ वेरी नियर. दे वर नॉट एट ऑल एट एनी कंडीशन टू होप दैट दे विल सर्वाइव. उन्हें दिख रहा था कि इस कंडीशन से बचना मुश्किल है. But Wave Walker rode out of the storm, and by the morning of January 6, with the wind easing, I tried to get reading on the sextant. But the author is saying, on the opposite of their hope, or on the contrary of their hope, means they were thinking that their end was near, but on the contrary, their boat Wave Walker rode out the storm. It was able to come over the storm. लेकिन उस रात वेव वॉकर ने बहुत अच्छे से परफॉर्म करा और उनकी जो बोट थी वो स्टॉर्म के बाहर निकल आई. और जनवरी 6 को जो विंड थी वो ईज हो गई. ईज का मतलब जो विंड, स्टॉर्मी विंड थी, दे बिकेम काल्म एंड क्वाइट. और जो ऑथर कैप्टन है वो रीडिंग रूम में जाता है और सेक्सटेंट पर जो उनका चार्ट, जो नेविगेशन का टूल था, उसके ऊपर उसने अपनी कंडीशन की रीडिंग करना शुरू करी. बैक इन चार्ट रूम आई वर्कड ऑन विंड स्पीड. वहाँ जाकर उसने विंड की स्पीड को चेक करा, क्या स्पीड है. चेंज ऑफ कोर्स, ही ऑल्सो चेक द इफ ही विल चेंज द रूट ऑफ हिज शिप वेयर ही विल गो. ये सारी बातें उसने सर्च करी. ड्रिफ्ट द करेंट इन द एफर्ट्स ऑफ कैलकुलेट
a position. He also calculated his position in the vast ocean. The best I could determine was that we were somewhere in 1,50,000 kilometer of ocean looking for a 65 kilometer wide island. And after making all his study, research and calculation, जो कैप्टन है वो इस बात को सर्च करता है. ही डिसाइडेड, ही इज एबल टू डिटरमाइन, ही इज एबल टू सर्च आउट दैट दे वर in the midst of 1,50,000 किलोमीटर वाइड ओशन. जो साउथ इंडियन ओशन था उसमें लगभग 1,50,000 किलोमीटर बड़े फैले हुए समुद्र में बीच में वो कहीं थे. एंड इन सच अ वास्ट आइलैंड दे वर लुकिंग, दे वर सर्चिंग a small island which was only 65 किलोमीटर वाइड. इतने बड़े समुद्र के बीच में वो केवल एक 65 किलोमीटर वाइड आइलैंड को ढूंढ रहे थे. दैट वाज अ वेरी डिफिकल्ट टास्क, बट दिस वाज द ओनली होप ऑफ सर्वाइवल. सो दे वर डिटरमाइंड टू फाइंड इट. While I was thinking, Sue, moving painfully, joined me. The left side of her head was now very swollen, and her blackened eyes narrowed to slits. She gave me a card she has made. Now, when the captain of the ship was making all these calculations, in the meanwhile, his daughter Sue came, and she was not having a very good condition. Actually, she got injury over her head. So the captain is saying that because of the injury, the left side of her head was very swollen, and because of the swelling, uh, his eyes narrowed to a slits. मीन्स एक तरह से स्लिट्स पड़ गए थे, परतें पड़ गई थी, इतनी ज़्यादा स्वेलिंग हो गई थी. और उसकी जो आइज़ थी उस सूजन की वजह से एकदम नैरो हो गई थी, छोटी हो गई थी, दिखाई भी नहीं पड़ रही थी. उसकी इंजरी इतनी ज़्यादा बढ़ चुकी थी. और उसकी बेटी ने क्या करा, शी गेव मी अ कार्ड शी हैज़ मेड. उसने अपने फादर को एक हैंडमेड कार्ड दिया. दिस पॉइंट इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट बिकॉज इसमें से भी क्वेश्चन आते हैं. ठीक है, तो उसने क्या कार्ड दिया था. ऑन द फ्रंट शी हैज़ ड्रॉन कैरिक्रेचर्स. कैरिक्रेचर्स का मतलब होता है कार्टूनिस्टिक फिगर. जैसे किसी पर्सन का एक कार्टून बनाते हैं ना, मोस्टली पॉलिटिशियंस के ऊपर इस तरह के जोक होते हैं, फिल्म स्टार्स के ऊपर होते हैं, तो उन लोगों का जो एक कार्टूनिस्टिक फिगर बनाया जाता है उसको कहते हैं कैरिक्रेचर. On the front she had drawn caricatures of Mary and me with the words, "Here are some funny people. Did they make you laugh?" I laughed a lot as well. Inside was a message, "Oh, how I love you both." So, this card is to say thank you and let's hope for the best. Somehow we had to make it. Now, what happened? The daughter of the captain, Sue, gave a card to the captain. She has drawn the cartoonistic figure of his father and his mother on this card, and she has also written a message. And in the message she has written, "Here are some funny people." वो जो उसने कार्टूनिस्टिक फिगर बनाए थे उसके लिए उसने लिखा है कि ये कुछ फनी पीपल है, और उसने लिखा, "These funny people will surely make you laugh." और ये पढ़कर जो कैप्टन था वो सच में हंसा. और उस कार्ड के अंदर एक और मैसेज था, ये तो ऊपर ही लिखा हुआ था. इनसाइड द कार्ड वॉज अ मैसेज. उसने कार्ड के अंदर मैसेज था, "हाउ आई लव यू बोथ." ये उसकी डॉटर ने लिख के भेजा है. एंड she is also saying that she has made this card just to say thank to his father and mother for all the best effort they are making. And she also said somehow we had to make it. She is saying कि they will have to fight this condition anyhow they need to fight this condition. They will have to come over this critical circumstances. I checked and rechecked my calculation. We had lost our main compass, and I was using a spare which had not been corrected for magnetic variation. Now, captain is saying that he was checking his calculation, he was trying to know his position in the ocean, and
एज ही हैज़ लॉस्ट हिज मेन कंपास, जो उनका मेन कंपास था वो तो उसने खो दिया था, वो शिप में स्टॉर्म के दौरान कहीं गुम हो गया था, तो वो एक स्पेयर कंपास का यूज़ कर रहा था। और ये जो स्पेयर कंपास है ये बहुत ज़्यादा परफेक्ट नहीं है उस तरह के वेरिएशन, उस तरह के कैलकुलेशन करने के लिए जो कैप्टन अभी कर रहा है, बट उसके पास अभी यही है। आई मेड एन अलाउंस फॉर दिस, और उसने इस जो स्पेयर कंपास था जो बहुत ज़्यादा परफेक्ट नहीं था उसके साथ उसने एडजस्ट करा for this and another estimate of the influence of the westerly currents which flow through this part of the Indian Ocean। और उसी कंपास के हेल्प से उसने उन वेस्टर्ली विंड्स को कैलकुलेट करा, उनकी स्पीड को कैलकुलेट करा जो इंडियन ओशन के इस पार्ट में ब्लो कर रही थी, बह रही थी, ठीक है, मीन्स साउथर्न इंडियन ओशन पार्ट की। About 2 p.m. I went on deck and asked Larry to steer a course of 185 degree. Now, author is saying that at about 2 p.m. उसी दिन लगभग 2 बजे, दोपहर के 2 बजे, I went on deck, वो फिर से डेक पर जाता है यानी शिप की छत पर जाता है, और लैरी को उसने बोला टू स्टीर द कोर्स। स्टीर का मतलब एक तरह से उसने शिप को घुमाने के लिए कहा एट द कोर्स ऑफ 185 डिग्री। उसने सारे कैलकुलेशन करने के बाद लैरी को इंस्ट्रक्शन दिया कि शिप को 185 डिग्री के कोर्स पर यानी एंगल पर घुमा दिया जाए। वो अब अपना रूट चेंज करना चाह रहा है ताकि वो उस आइलैंड पे पहुंच पाए जहां पहुंचने की उनको उम्मीद है। If we were lucky, I told him with a conviction I did not feel he could expect to see the island at about 5 p.m. और कैप्टन ये भी कह रहा है कि अगर वो लोग लकी रहे और कैप्टन के जो भी कैप्टन ने कैलकुलेशंस किए वो सारे कैलकुलेशन अगर ठीक रहे, देन ही इज श्योर दैट बाय द 5 p.m. he Larry will see the island which they are looking for। ठीक है, तो कैप्टन ने लैरी को ये कहा कि अगर उसके सारे कैलकुलेशन सही रहे तो उसे उम्मीद है कि लगभग शाम को 5 बजे तक वो लोग उस आइलैंड को देख लेंगे, ढूंढ लेंगे, जिसके लिए वो यहाँ मतलब जिसकी वो सर्च कर रहे हैं। लेकिन वो कह रहा है इस चीज़ के चांसेस उसको कम थे। ही डिड नॉट फील का मतलब है उसको उस चीज़ के चांसेस कम लग रहे थे क्योंकि वो जो कुछ कर रहा था उसके टूल्स अप्रोप्रिएट नहीं थे। ही इज ओनली मैनेजिंग विद ऑल दोज थिंग विच ही हैड लेफ्ट आउट ऑफ द स्टॉर्म। इस स्टॉर्म के बाद जो कुछ बचा था उससे मैनेज करके जैसे तैसे वो अपना काम चला रहा था। देन विद अ हैवी हर्ट आई वेंट बिलो, climbed on my bunk and amazingly dozed off। dozed off means sleep, थोड़ा सा नैप लेना जिसको कहते हैं झपकी लेना, ठीक है। उसके बाद लैरी को इतना इंस्ट्रक्शन देने के बाद कैप्टन जो था वो वापस नीचे जाता है, अपने बंक के ऊपर चढ़ता है, अपने बर्थ पर चढ़ता है और थोड़ी देर के लिए वो सो जाता है, उसको एक डोज आ जाती है। When I woke इट वॉज 6 p.m। जब वो जागा तो लगभग शाम के 6 बजे थे एंड ग्रोइंग डार्क, अंधेरा हो रहा था। आई न्यू वी मस्ट हैव मिस्ड द आइलैंड, और कैप्टन को लग रहा था कि शायद उन्होंने आइलैंड खो दिया क्योंकि उसको उम्मीद थी कि 5 बजे तक वो आइलैंड पर पहुंच जाएंगे। 6 बज रहे थे और अभी तक आके किसी ने उसको ये मैसेज नहीं दिया था कि उन लोगों ने आइलैंड ढूंढ लिया है। सो द कैप्टन वॉज थिंकिंग दैट ही मस्ट हैव मिस्ड द आइलैंड, उन्हें आइलैंड नहीं मिला। एंड विद द सेल वी हैड लेफ्ट, और उस सेल, उस पाल, उस सेल के हेल्प के द्वारा जो उनके पास मीन्स अब उनके पास सिर्फ एक ही सेल बचा था, एक ही पाल बचा था जो इतना कमजोर था कि जिसके सारे वी कुडंट होप टू बीट बैक इनटू द वेस्टर्ली विंड्स। अगर वो उस सेल का यूज करके उस वेस्टर्ली विंड, उस साउथर्न इंडियन ओशन के उस तूफानी हवाओं को क्रॉस करके वापस जाना चाहें तो वो भी नहीं हो सकता था। मीन्स ऑथर अब जो कैप्टन है वो बहुत ही डिसअपॉइंटेड है, उसको लग रहा है कि उन्होंने आइलैंड खो दिया है, वो डेफिनेटली आइलैंड पर तो पहुंच ही नहीं पाएंगे, और जो सेल उनके पास बचा रह गया है उसका यूज करके वो वापस भी नहीं जा पाएंगे। सो ही वॉज थिंकिंग दैट देयर दैट इज डिटरमाइंड। At the moment, a tousled head appeared by my bunk. Can I have a hug? Jonathan asked.
Sue was right behind him. When the captain was busy or he was engrossed in all these thinking, all of a sudden he saw a tousle head, एक उभरता हुआ सिर, मीन्स वो तो बंक पर ऊपर था, तो नीचे से एक सिर उसके सामने उभरता हुआ आया, और वो सिर, वो हेड था उसके बेटे का, और उसके बेटे ने ऊपर चढ़कर अपने डैडी से कहा, कैन आई हैव अ हग? उसने अपने फादर से कहा, क्या मैं आपको गले लगा सकता हूँ? और उसकी बेटी सी उसके भाई के बाजू में ही खड़ी हुई थी. वाई am I getting a hug now? I asked. So, the captain asked his son, why do you want to give me a hug? Because you are the best daddy in the world, the whole world, and the best captain, my son replied. At this, the son of the captain replied, he wants to hug his father because he has proven that he is one of the best fathers of the world, and at the same time, he is one of the most efficient captain of the ship also. उसने कहा आपने प्रूव कर दिया, आप एक अच्छे फादर और एक अच्छे कैप्टन दोनों ही हैं. Not today, John, I am afraid. तो कैप्टन ने अपने बेटे को कहा, तुम जो कह रहे हो वो मुझे नहीं लगता, क्योंकि आज मैंने प्रूव कर दिया है कि मैं ऐसा नहीं हूँ. क्योंकि कैप्टन तो अभी तक यही सोच रहा है कि उसको आइलैंड नहीं मिला है. Why? You must be. जॉनथन ने कहा, ना आप ऐसे ही हैं. Said Sue in matter of fact voice. नहीं, ये बात जॉनथन ने नहीं, ये बात स्यू ने कहा. स्यू ने कहा, आप ऐसा क्यों कह रहे हो? ये बात सच है, आज के मैटर में तो ये बिल्कुल फैक्ट है. उसकी आवाज में बिल्कुल सच्चाई थी. यू फाउंड द आइलैंड? और स्यू ने बोला, फादर, वी हैव फाइंड द आइलैंड. यू हैव फाउंड द आइलैंड विच यू वाज सर्चिंग फॉर. That is why we are saying that you are the best father and the most efficient captain. What? I shouted. ये सुनकर वो शॉक हुआ कैप्टन. उसने बोला, क्या? It's out there in front of us. They coasted as big as a battleship. ठीक है, तो स्यू ने उनको और दोनों बच्चों ने बताया कि वो देखिए, वो आइलैंड हमारे सामने ही है, और वो इतना बड़ा है जितना कि एक बैटलशिप होता है. I rushed on deck and gazed with relief at the stark outline of Ile Amsterdam. It was only a bleak piece of volcanic rock with little vegetation, the most beautiful island in the world. Now, after this disclosure, जैसे ही उन्होंने ये डिस्क्लोज करा, जो कैप्टन था वो वापस डेक पर जाता है, और उसने उस आइलैंड की आउटलाइन को देखा, उसकी बाउंड्री को देखा. जो उनके डेक से दिखाई दे रहा था वो था इले एम्स्टर्डम आइलैंड, विच वॉज द ओनली होप ऑफ सर्वाइवल फॉर द कंप्लीट फैमिली. और ऑथर ये भी बता रहा है, कैप्टन बता रहा है, ये जो आइलैंड है ये बहुत अच्छा, मतलब इतना सुंदर आइलैंड नहीं है जिनके बारे में हम लोगों ने सुन रखा है, फुल ऑफ वेजिटेशन एंड ग्रीनरी, ऐसा कुछ नहीं है. ये एक वॉल्केनिक रॉक का एक ब्लीक पीस, एक काला बदसूरत एक रॉक का पीस है जो एक वॉल्केनो से निकला हुआ है. मीन्स कभी यहाँ पर एक वॉल्केनो था और उसके बाद अब ये रॉक है, ये वही आइलैंड है. ये बहुत सुंदर नहीं है, लिटिल वेजिटेशन, इस पे जो मतलब वेजिटेशन है, जो नेचुरल ग्रीनरी है वो भी बहुत कम है. द मोस्ट ब्यूटिफुल आइलैंड इन द वर्ल्ड. बट इन स्पाइट ऑफ दिस, द कैप्टन इज सेइंग दिस इज वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटिफुल आइलैंड इन द वर्ल्ड फॉर देम. क्योंकि उनके लिए तो यही दुनिया का सबसे सुंदर आइलैंड है, चाहे ये एक केवल एक वॉल्केनो का एक बेल्कोनो का बड़ा ही अगली पीस है, लेकिन उनके लिए सबसे सुंदर इसलिए है क्योंकि दिस इज द प्लेस वेयर दे कैन सर्वाइव. ठीक है. वी एंकर्ड ऑफ शोर. एंकर्ड मीन्स उन्होंने अपने शिप को रोक दिया. ऑफ शोर माने बाहरी, मीन्स वो शोर पर ही, किनारे पर, समुद्र, वो आइलैंड में अंदर नहीं गए, उन्होंने बाहर ही अपने शिप को एंकर करा फॉर द नाइट, क्योंकि उस समय रात थी, तो उन्होंने अपने लिए सेफ यही समझा कि वो आइलैंड पर बाहर ही रुके हैं, अंदर न जाए. एंड द नेक्स्ट मॉर्निंग ऑल 28 inhabitants of the island cheered as they helped us ashore. और अगली मॉर्निंग जो थी, जब रात को तो वो लोग वहीं, जब वो आइलैंड पे पहुंचे तो रात थी, वो बाहर ही रुक गए, और अगली मॉर्निंग उस आइलैंड में जितने भी लोग रहते थे वो थे 28,
उस आइलैंड पे 28 इनहेबिटेंट्स थे, मतलब 28 उसके बाशिंदे थे जो उस पर रहते थे, और उन्होंने मिलकर अगली मॉर्निंग कैप्टन का, उसकी फैमिली का बहुत अच्छे से स्वागत करा, उन्हें चीयर करा और उनको अपने आइलैंड पर वेलकम किया। ठीक है, सो इन दिस वे द कैप्टन इज एबल टू रीच at last after facing so many difficult conditions, after facing critical situations, the captain was able to reach his destination with land under my feet again. Now the captain is saying that he is feeling the touch of ground under his feet again. My thoughts were full of Larry and Herb. उसकी जो थॉट्स थे, मीन्स उसके मन में लैरी और हर्ब के लिए बहुत सारा धन्यवाद था. ही वॉज थैंकफुल टू लैरी एंड हर्ब बिकॉज आफ्टर अ ग्रेट स्ट्रगल, आफ्टर सो मैनी डेज, because of the help of Larry and Herb, he is able to feel the touch of ground under his feet again. Otherwise, he has lost his hope. ठीक है, and cheerful and optimistic under the direst stress, क्योंकि लैरी और हर्ब जो बहुत ज़्यादा उनका स्ट्रेस था उस टाइम पे भी वो चीयरफुल थे, वो खुश थे, और कैप्टन को एक ऑप्टिमिस्टिक होप दी उसने. हमेशा ऑप्टिमिज्म का मतलब होता है मीन्स यस वी कैन फाइट, जो आशावादी लोग होते हैं उनको कहते हैं. तो वो लैरी और हर्ब के लिए बहुत थैंकफुल था. एंड ऑफ मैरी, एट द सेम टाइम ही वॉज ग्रेटफुल to his wife Mary also, who stayed at the wheel for those crucial hours, because at those hours of difficulty his wife Mary controlled the wheel of the ship. वो एक हाउस वाइफ थी, हालांकि लोगों ने ट्रेनिंग लिए, लेकिन वो अपनी वाइफ को भी पूरा थैंक देना चाहता है जिसने शिप के व्हील को कंट्रोल करा उन डिफिकल्ट आवर्स में. मोस्ट ऑफ ऑल आई थॉट ऑफ a 7-year-old girl, लेकिन सबसे ज़्यादा उसके मन में जिसके लिए विचार आ रहे हैं वो है उसकी 7 साल की छोटी बेटी, who did not want to worry about a head injury, जो अपने सिर की चोट के बारे में अपने फादर को बताकर उसे परेशान नहीं करना चाहती है. जबकि आगे देखते हैं, which subsequently took 6 minor operations to remove a recurring ब्लड क्लॉट बिटवीन स्किन एंड स्कल. वो इंजरी जो इतनी सीवर थी, जो इतनी सीरियस थी कि बाद में उसको ठीक करने के लिए लगभग 6 ऑपरेशन किए गए, क्योंकि उसके स्कल और उसके स्किन के बीच में ब्लड की क्लॉटिंग हो गई थी. तो वो इंजरी बहुत सीरियस थी, लेकिन फिर भी उस छोटी बेटी ने, उसकी छोटी सी बच्ची ने उसके बारे में अपने फादर को बताकर उसको वरीड नहीं करा. तो वो उसकी ब्रेवरी के लिए उसको सैल्यूट करता है, उसके लिए थैंकफुल है. एंड ऑफ 6-year-old बॉय, सबसे ज़्यादा वो कह रहा है मैं अपने बेटे के लिए भी बहुत थैंकफुल हूँ जो केवल 6 साल का है. हु वॉज नॉट अफ्रेड टू डाई, जिसने ये स्टेटमेंट दिया दैट ही इज़ नॉट अफ्रेड टू डाई, उसको मरने से भी डर नहीं लगता. सो at the last the captain is paying thanks to all his family members, to his crewmen who helped him, who lit a light of optimism in the heart of the captain even at those crucial hours when he had lost all his hopes, all his thoughts for survival. So the captain is thankful to all these people. So student, here we have completed the chapter. I hope you must have understood the story of the chapter also. It is a very inspirational and deductive story which teaches us to be optimistic even at the, we can say, even at the most crucial or pessimistic time of our life, not to leave the hope till the end. Hope you must have understood it. Go through the chapter once or twice so that you can understand it in a better way. And students, इसके बाद जो है आपके कुछ क्वेश्चन आंसर्स हैं. मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में इन क्वेश्चन आंसर्स को आपको
दे दूंगी, ठीक है। जो नेक्स्ट वीडियो होगा उसमें ये क्वेश्चंस के आंसर होंगे सारे। ये सारे क्वेश्चंस तो नहीं है, जो भी मैंने करवाया वो उसमें मैंने लिख दिया है, तो आप वही क्वेश्चन आंसर जो मैंने अपने नेक्स्ट वीडियो में आपको सेंड करे हैं, अपनी जो फेयर नोटबुक आप बनाएंगे, ठीक है, हॉर्नबिल की, जिसमें आपने इससे पहले एक पोएम और एक चैप्टर करा है, उसी में इन क्वेश्चन आंसर्स को करिएगा। मैंने एनसीईआरटी के क्वेश्चंस के अलावा कुछ एक्स्ट्रा शॉर्ट क्वेश्चंस भी अपने नोट्स में आपको प्रोवाइड करे हैं, तो उनको भी लिखिएगा, ठीक है। और ये सारा काम नीट एंड क्लीन हैंडराइटिंग में मुझे आपकी नोटबुक्स में चाहिए। नोटबुक्स कंप्लीट करने के साथ साथ आप उनको व्हाट्सएप पर मुझे सेंड करिए, ताकि मैं चेक कर सकूं कि आप में से कितने बच्चे हैं जो रेगुलर अपना काम कर रहे हैं, जिनके नोटबुक्स रेगुलरली बन रहे हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो अबाउट द क्वेश्चन आंसर, एंड you are supposed to complete them in neat and clear handwriting in your notebooks, all the 3 chapters. First, the poem photograph. Second, the chapter portrait of a lady. Third, the chapter we are not afraid to die. And after completing the work in neat and clean handwriting, send your copies on WhatsApp to me. And इतना ध्यान रखिएगा, फर्स्ट पेज जो है वो इंडेक्स के लिए ब्लैंक छोड़िएगा, इंडेक्स जरूर बनना चाहिए सबकी कॉपीज में। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट आई वुड आल्सो लाइक टू गिव यू एन इंफॉर्मेशन कि हम लोग जो है बेटा सैटरडे को आपका एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन टेस्ट होना है आउट ऑफ द चैप्टर द पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी, ठीक है। तो उसके लिए प्रिपेयर रहिएगा। सैटरडे को द पोर्ट्रेट ऑफ द लेडी का ऑब्जेक्टिव टेस्ट पेपर आपको दिया जाएगा, जिसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होंगे और उसके कुछ ऑप्शन भी होंगे, आपको ऑप्शंस में से आंसर बताने हैं, और वो टेस्ट कंप्लीट करके आपको हर बच्चे को मेरे को व्हाट्सएप पर सेंड करना है, ठीक है। सो आई विल नॉट गिव यू फर्दर रिमाइंडर्स फॉर दिस टेस्ट, just listen carefully, and on Saturday you will be having a test. Hope you have understood everything. If you have any confusion, you can ask me by contacting me on WhatsApp. Okay students, thank you, have a nice day.